मैंने पुल Hare Krishna. I'm audible? Kindly give a thumbs up. Hare Krishna, everyone. So it's a it's been a third week. So we are on our sixth session of this Road to Gaudiya Vaishnavism. So gracefully, His Grace Charudev Proji has also joined. So we will be starting in just 2-3 minutes. Since अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं, no doubt everyone is just relishing these topics or of our very magnanimous, glorious Gaudiya Vaishnava Sampradaya and all our lineage from Sri Parikshit Maharaj to say Srila Prabhupada. Now today I think we are going to discuss the modern day Vaishnavism, or maybe the topic may be remaining yesterday. So we will very thankful to His Grace Acharya Prabhuji for giving his so valuable time for us and whole IYF. We are all very indebted to प्रभु जी. प्रभु जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और इतना नॉलेज हमें दे रहे हैं, so we can flex that we belong to such a glorious संप्रदाय, श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय. So we'll welcome His Grace Sucharudev Prabhuji, one time chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Sucharudev Prabhuji की जय, श्री प्रभुपाद की जय. Over to you, Prabhuji, if you are here, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji's Akshay Prabhu, we can start.
Yes, yes, Proji, we can start now, Proji. Cool, perfect. Thank you very much. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत सरस्वती इति नामिने भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इन द लास्ट सेशन ऑफ आवर द रोड टू गौड़िया वैष्णविज्म सीरीज. So it has been a wonderful journey that we have traveled together in the soothing shade of Srila Prabhupada's mercy. I'll just share my screen. So we can continue from there. Okay, we'll take questions. No problem, bro. No problem at all. So this journey started 3 weeks ago when we discussed the life story of Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj and his teachings, not majorly teachings, but life story of Parikshit Maharaj, particularly his final pastimes. और उसके बाद हमने someone can please keep admitting people. Screen पे आ जाता है हमारा. And then from Parikshit we understood how Kali Yuga उसने अपने पांव पसारने शुरू किए because of fall of Brahminical culture, fall of let's take this back. Fall of Brahminical culture. And then from Kali Yuga we understood the appearance of Buddha Dev and his teachings, his life, thoda bahut life, thoda bahut teachings, thoda bahut legacy of Buddha Dev. That's what we discussed. And from Buddha Dev we went to the life and teachings of Shripad Shankar and his contribution in the Vedantic tradition, establishing the Vedas again. And in next session we discussed the 4 Vaishnav Sampradayas, their legacy, their teachings, their principles, and their contribution in establishing Vishnu Bhakti.
बट इसके लिए जो ग्राउंड वर्क है, दैट ग्राउंड वर्क वाज डन बाय आदि शंकराचार्य, जिसमें उन्होंने वेदों की अथॉरिटी को स्थापित किया था. So Vishnu Bhakti was established by the four Vaishnav Sampradayas. While Vishnu Bhakti was being established in India, at the same time in the Arabian Peninsula or in the Arabian world, the Abrahamic religions were also originating. Abrahamic religions. और Abrahamic religions में हमने डिस्कस किया क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम. ब्रीफ हिस्ट्री उनकी तीनों की, उनकी बेसिक फिलॉसफी, हाउ दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, व्हाट इज देयर मसाया, ये सभी चीजों को हमने डिस्कस करने की कोशिश की. और फिर हमने फोर्थ सेशन में डिस्कस करने की कोशिश की उसके बाद हमने फोर्थ सेशन में डिस्कस करने का प्रयास किया द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु और and how the appearance of four Vaishnav Sampradayas, they played a very crucial role in creating a ground जिसमें चैतन्य महाप्रभु अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार कर सके. यार ये लोग क्या कर रहे हैं? Just give me a second. छोड़ के चले गए. तो अपीयरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एंड हाउ श्री चैतन्य महाप्रभु लेड द फाउंडेशन ऑफ गौड़ीय संप्रदाय, और कैसे चैतन्य महाप्रभु के बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, they carried forward the legacy of the sampradaya. And the previous session हमने डिस्कस किया particularly श्रीला जीव गोस्वामी. एंड जीव गोस्वामी को डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम गौड़ीय संप्रदाय की कुछ फिलोसफिकल बेसिस को समझ पाए कि गौड़ीय संप्रदाय का आधार क्या है, गौड़ीय संप्रदाय का सैद्धांतिक अधिकार क्या है, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय बीइंग अ गौड़ीय. And therefore in previous class, I mean yesterday, we discussed the to some extent, to a very small extent, the philosophy of Gaudiya Sampradaya and how that philosophy is different from Vedantic traditions. मतलब अद्वैत वेदांत से भी अलग है, क्योंकि अद्वैत वेदांत जो है वो ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है भक्ति से, and that is different from Vaishnav Sampradayas also to some extent, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में प्रेम को लेकर इतना एम्फेसिस, ऑफ कोर्स प्रेम इज द अल्टीमेट गोल, बट हाउ प्रेम हैज टू बी कल्टिवेटेड एंड व्हाट रोल ज्ञान इज प्लेइंग, कर्म इज प्लेइंग इन कल्टिवेशन ऑफ भक्ति, ये इतना बृहद वर्णन नहीं है जितना बृहद वर्णन हमें श्रीला जीव गोस्वामी की राइटिंग्स में मिलता है, या लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स में मिलता है, या रूप सनातन गोस्वामी की राइटिंग्स में मिलता है. इसलिए गौड़ीय संप्रदाय is very unique in the sense that it claims that, and which is also a reality, that bhakti is culmination of Vedanta, bhakti is the perfection of Vedanta. At the same time, gyan is not to be rejected for achievement of prema. Gyan helps us in achieving prema. Gate अच्छे से लगा देना. Gyan helps us in achieving prema. इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए ज्ञान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है, क्योंकि जो वैदिक भक्त है उसको ज्ञान की आवश्यकता है, उसी ज्ञान से वो प्रेम को प्राप्त कर सकता है. ऑफ कोर्स प्रेम वैसे भी मिल सकता है, बिना ज्ञान के भी प्रेम मिल सकता है, परंतु जनरलाइज प्रिंसिपल नहीं है. एक जनरलाइज प्रिंसिपल के हिसाब से हमें ज्ञान की आवश्यकता है ताकि मैं प्रेम को कल्टीवेट कर सकूं. वैदिक भक्ति प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है ताकि मैं वैदिक भक्ति प्रैक्टिस करते करते रागानुगा स्तर तक, प्रेम के स्तर तक जा पाऊं, परंतु वैदिक भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता है. साथ ही साथ हमने देखा कि जो गौड़ीय संप्रदाय है, श्री चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स है, वो कैसे रस को और ज्ञान को, इन दोनों को साथ में लेकर आती है बाय द हेल्प ऑफ श्रीमद् भागवतम. हाउ श्रीमद् भागवतम परफेक्टली एग्जाम्प्लिफाइज बोथ रसा एंड ज्ञान. That was the discussion yesterday, and how the theological philosophical basis of Gaudiya Sampradaya was established. कल हम डिस्कस नहीं कर पाए नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण को. So I will today briefly discuss them
and then we will go to Srila Baladev, I'm so sorry, Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and Srila Prabhupada. So क्या चल रहा है बंगाल में उस टाइम, थोड़ा आज और आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज हैपनिंग इन बंगाल. सो वृंदावन है एक तरफ और एक तरफ है बंगाल. दोनों हॉटस्पॉट्स हैं गौड़ीय संप्रदाय के, और दोनों ही स्थानों पर गौड़ीय संप्रदाय बहुत अलग तरीके से अपनी प्रीचिंग कर रहा है, या गौड़ीय संप्रदाय का जो स्वरूप है वो दोनों जगहों पर बहुत अलग अलग. वृंदावन में इट्स मोस्टली कृष्ण कथा, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज कृष्णास भूमि, सो देयरफॉर वृंदावन में देयर विल बी कृष्ण कथा. परंतु बंगाल में इट्स मोस्टली गौड़ कथा. वृंदावन में मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स जो आचार्य लिख रहे हैं इट्स इन संस्कृत. जो रूप सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जो भी राइटिंग्स लिख रहे हैं वो सब संस्कृत में है. बंगाल में इट्स मोस्टली इन बांग्ला. वृंदावन में स्कॉलर्स हैं गौड़ीय संप्रदाय के, और बंगाल में फॉलोअर्स हैं गौड़ीय संप्रदाय के. बंगाल में उतने स्कॉलर्स नहीं है और वृंदावन में उतने फॉलोअर्स नहीं है. साथ ही साथ वृंदावन में द एम्फेसिस इज ऑन तत्व, कृष्ण तत्व, गौड़ तत्व, द तत्व ऑफ गौड़ीय सिद्धांत. एंड इन बंगाल द एम्फेसिस इज ऑन लीला. और लीला कैसे, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, ये सब लिखे जा रहे हैं. ये सब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. सो देयर इज अ गैप बिटवीन वृंदावन एंड बंगाल. वृंदावन में लीडर्स हैं, वो लीडर्स संस्कृत पे लिख रहे हैं, वो कृष्ण कथा लिख रहे हैं. बंगाल में फॉलोअर्स हैं, वो बांग्ला में पढ़ रहे हैं, गौड़ कथा पढ़ रहे हैं. नाउ हाउ डू वी ब्रिज दिस गैप? देयर इज अ गैप बिटवीन वृंदावन वैष्णवास एंड बंगाल गौड़ीय वैष्णवास. और ये गैप बहुत सिग्निफिकेंट होता जा रहा है हर पासिंग डे के साथ. तो हम इस गैप को कैसे ब्रिज करें? तो इस गैप को ब्रिज करने, जो वृंदावन और बंगाल की गौड़ीय वैष्णवों में गैप है, इस गैप को ब्रिज करने I, after Chaitanya Mahaprabhu's disappearance, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंचे बंगाल से वृंदावन. और रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु की अंत्य लीला के बारे में पढ़ाई की, स्टडी किया, और महाप्रभु की अंत्य लीला को देखा. रघुनाथ दास गोस्वामी जब पुरी में थे ड्यूरिंग द फाइनल पास टाइम्स ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने महाप्रभु की अंतिम लीला को देखा है, इसलिए ही नोज अबाउट द फाइनल पास टाइम्स ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु. सो रघुनाथ दास गोस्वामी, आफ्टर disappearance of Chaitanya Mahaprabhu, he decides that I will actually go to गोवर्धन, और मैं गोवर्धन से कूदकर अपनी जान दे दूंगा, या यमुना में डूबकर अपनी जान दे दूंगा. परंतु रूप और सनातन गोस्वामी ने उनको सिखाया कि अगर कूदकर या जान देने पर ही चैतन्य महाप्रभु मिल जाते तो सबसे पहले तो हम जान दे देते, परंतु आपको जाकर भजन करना चाहिए और भजन के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए. So Raghunath Das Goswami, he goes to Radha Kunda and starts doing bhajan there. And every evening Raghunath Das Goswami speaks Gaur Katha from his खर्चा. खर्चा means diary. क्योंकि जब वो पुरी में थे तो उन्होंने एक डायरी मेंटेन की थी about the teachings of about the life pastimes of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu that he was seeing. So he saw this खर्चा, और उस खर्चा से रघुनाथ दास गोस्वामी वुड स्पीक गौर कथा एवरी डे, एवरी इवनिंग एट राधा कुंड. और रोज कोई और हो ना हो, एक व्यक्ति जो रोज उस डिस्कशन में रहता था, दैट यूज्ड टू बी कृष्णदास कविराज गोस्वामी. कृष्णदास कविराज गोस्वामी वुड एवरी डे कम टू हियर फ्रॉम रघुनाथ दास गोस्वामी. एंड व्हेन रघुनाथ दास गोस्वामी डिसअपीयर्ड, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वाज 90 years of age. All the devotees of Vrindavan, they approached कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ लिखिए, क्योंकि आपने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है रघुनाथ दास गोस्वामी से. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी टेक्स ऑन द मैसिव टास्क ऑफ राइटिंग चैतन्य चरितामृत. नाउ दिस चैतन्य चरितामृत इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखिए ऑलरेडी चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल एग्जिस्ट करता है. व्हाई इज दिस चैतन्य चरितामृत इंपॉर्टेंट? बिकॉज चैतन्य भागवत एंड चैतन्य मंगल आर पास टाइम्स. ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं. परंतु चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? व्हाट इज द लाइफ, व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु? ये अभी तक क्लियर नहीं है. और ना चैतन्य मंगल ना चैतन्य भागवत में
ये डिस्कस हुआ है। So, so no one knows the philosophy of Krishna Chaitanya Mahaprabhu. और वहां पर चैतन्य चरितामृत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चैतन्य चरितामृत is unique in many sense. Why is it unique? It is unique because चैतन्य चरितामृत में दोनों चीजें हैं। ये लीला है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु अंत्य लीला, मध्य लीला, आदि लीला, इस तरीके से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पास टाइम्स ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सेग्रीगेट किया। लेकिन साथ ही साथ चैतन्य चरितामृत में 5 इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशंस हैं, जो कन्वर्जेशंस चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी को एक बहुत फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फॉर्म देती है। क्या वो कन्वर्जेशंस हैं? उनमें से 2 कन्वर्जेशंस was with devotees and 3 of them was with apparent non devotees. तो चैतन्य महाप्रभु का कन्वर्सेशन रूप गोस्वामी के साथ रूप शिक्षा, सनातन गोस्वामी के साथ सनातन शिक्षा प्रयाग और बनारस में, और चैतन्य महाप्रभु का कन्वर्सेशन प्रकाशानंद सरस्वती, रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य, इन ये तीनों नॉन डिवोटीज हैं। ये कन्वर्सेशंस जो है, ये कन्वर्सेशंस दे एक्सप्रेस द मूड एंड टीचिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, एंड दिस हेल्प्ड टू authenticate Chaitanya Charitamrit and to establish the authority of Chaitanya Charitamrit, and all the Vaishnavas जो चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट अब तक नहीं समझ पाए थे, वो समझ पाएंगे by reading चैतन्य चरितामृत। एंड जब नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद वृंदावन से बंगाल गए तो जीव गोस्वामी ने उनके साथ चैतन्य चरितामृत भेजा। अब देखिए, चैतन्य चरितामृत दोनों चीजें हैं। चैतन्य चरितामृत में तत्व है, यस, लेकिन चैतन्य चरितामृत में लीला भी है। चैतन्य चरितामृत में कृष्ण, ऑल्दो इट इज मेजरली चैतन्य चरितामृत, उस पे कनेक्ट कर दे दो, चैतन्य चरितामृत इज मेनली गौर कथा, बट इट वाज रिटन in the environment of Vrindavan, so it also has acceptance from Vrindavan Vaishnavas. Chaitanya Charitamrit, it was written by a scholar. Krishnadas Kaviraj Goswami was a scholar, so it was written by a scholar, but the language was Bangla, so even followers can access Chaitanya Charitamrit. In this way, जो actually gap है वृंदावन और बंगाल के बीच में, इसको ब्रिज करने का कार्य किसी ने किया है, that was done by Shri Krishnadas Kaviraj Goswami and his masterpiece Chaitanya Charitamrit. In this way, Chaitanya Charitamrit plays a very pivotal role. So after Srila Jeev Goswami disappeared, then Narottam Srinivas Shyamananda, they preached. Then came the mighty Vishwanath Chakravarti Thakur to Vrindavan. Although we will not go in live teachings of Vishwanath Chakravarti Thakur, but when Vishwanath Chakravarti Thakur Vrindavan padhare, वृंदावन was not a comfortable place. 3 लेवल ऑफ अटैक थे उस समय गौड़ीय संप्रदाय पर। 3 स्तर से गौड़ीय संप्रदाय को अटैक किया जा रहा था। पहला स्तर था बाय मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स हैं, they were challenging the authority, they were challenging the संप्रदाय ऑल टुगेदर। जीव गोस्वामी ने अकबर के साथ बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए थे, परंतु जीव गोस्वामी के जाने के बाद, जीव गोस्वामी के जाने के बाद अकबर has died and now Aurangzeb's rule is there. So Aurangzeb is a tyrant, पूरे संप्रदाय को तहस नहस, मंदिरों को, पूरा जो रिलीजियस सेटअप था उसको कंप्लीटली डिजास्ट्रस तरीके से बर्बाद करने का काम किया औरंगजेब ने। सो द फर्स्ट चैलेंज वाज फ्रॉम द एंड ऑफ मुस्लिम्स। सेकंड चैलेंज वाज फ्रॉम द एंड ऑफ स्मार्तर्स, क्योंकि स्मार्तर्स ने कहा कि आपके संप्रदाय की ऑथेंटिसिटी क्या है, आपके संप्रदाय की प्रामाणिकता क्या है, आपकी कमेंट्री कहाँ है वेदांत सूत्र पर। इन सारे चैलेंजेस को लेकर स्मार्ताज आ रहे थे, कह रहे थे रूप और सनातन गोस्वामी आपके आचार्य हैं, लेकिन ये दोनों तो यवन है। दबीर खास संसाकर में लिख, हाउ कैन यू एस्टैब्लिश देम एज योर अथॉरिटी? So there was challenge from Smartas. And third, there was confusion within Sampradaya. Within Sampradaya, कि चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? क्या चैतन्य महाप्रभु परकिया भाव देने आए, या चैतन्य महाप्रभु स्वकीय भाव देने आए? महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? What is the conclusion of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu? That was also not clear. और इन challenges के बीच विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन आए। So it was not like कि महाराज वृंदावन आ रहे तो ढोल नगाड़े बज रहे, नहीं, he came in a very gloomy time. But anyway, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur came to Vrindavan and he established the
he started to write and he established the authenticity of Gaudiya संप्रदाय again. उन्होंने दोबारा मंदिरों के मैनेजमेंट को संभाला, दोबारा संप्रदाय को संभाला, जो 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 मॉनेटरी मैनेजमेंट होता है पैसे के टर्म्स में, कंस्ट्रक्शन के टर्म्स में, सिद्धांत के टर्म्स में, in every sense, both as a brahmana and a kshatriya, he started to lead the sampradaya again. And when Vishwanath Chakravarti Thakur was serving in this way, there was another challenge which was happening in Rajasthan. So औरंगजेब के अटैक के कारण जो डीटीज हैं वो वृंदावन में थी, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। वृंदावन से वो राधा कुंड गई, राधा कुंड से वो काम्यवन गई, काम्यवन में दे स्टेड फॉर अराउंड 31 years, और काम्यवन से वो डीटीज गई इन जयपुर। और जयपुर में जहां आज हम गोविंद देव जी को देखते हैं, सीधा वहां नहीं गई, उससे पहले दे वेंट टू गलता जी, एंड गलता जी में these deities were stored for a long time. Now the problem with Galta ji is that Galta ji is a peat of Ramanandi Vaishnavas. I'm sorry, रामानंदी वैष्णवास। और गलता पीठ बहुत समय से रामानंदी वैष्णवों का गढ़ रहा है, और जब गलता पीठ में रामानंदी वैष्णवों के बीच में गौड़ीय आचार्य के विग्रहों की स्थापना शुरू हो गई, then it caused lot of stir and disturbance among those Ramanandi Vaishnavas, not out of envy but anyway, क्योंकि गौड़ी, इस चीज को ऑलरेडी हमने जयपुर में डिटेल में कवर कर लिया, आई एम स्किपिंग दिस पार्ट, बट जो जयपुर के राजा हैं वो हमेशा से ही रामानंदी वैष्णवों के शिष्य रहे, तो इसीलिए इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर देम कि जो सवाई जयसिंह द्वितीय हैं, हाउ we are their gurus, we Ramanandis are the gurus of Jaipur kings, why are they giving so much importance to these Gaudiya Vaishnavas? So this caused lot of disturbance in Galta Peeth, और वहां पर there was a massive challenge जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास आया कि संप्रदाय की ऑथेंटिसिटी को रामानंदी वैष्णवों के बीच कैसे स्थापित किया जाए। देखिए, इसकी तैयारी चैतन्य महाप्रभु ने शुरू कर लिया था, इसकी तैयारी चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया। चैतन्य महाप्रभु जब कई दशक पहले गए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में वो एक अपने फॉलोअर से मिले, उसका नाम था तपन मिश्रा, एंड तपन मिश्रा वाज रीडिंग लॉट ऑफ शास्त्रास टू अंडरस्टैंड साध्य साधन तत्व, के आमी केने आमाय जारे तापत्राय, हु एम आई, हु इज गॉड, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद ट्रुथ। इसको बांग्लादेश में चैतन्य महाप्रभु के भक्त, देखिए चैतन्य महाप्रभु की इंटेलिजेंस। तो बांग्लादेश में तपन मिश्र से चैतन्य महाप्रभु मिलने गए, और चैतन्य महाप्रभु को तपन मिश्र बोले कि महाप्रभु मैं जानना चाहता हूँ साध्य साधन तत्व, हु एम आई, हु इज गॉड, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड, मैं भगवान को कैसे समझ सकता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु को बोले कि आप जाइए बनारस, और बनारस में जाकर आप रहना शुरू कीजिए। तो तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन पर बनारस गए, और बनारस जाकर तपन मिश्र रहने लगे, और तपन मिश्र के पुत्र हुए रघुनाथ दास गोस्वामी। तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ दास गोस्वामी। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी, तो जब आई एम सॉरी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इट्स नॉट रघुनाथ दास गोस्वामी, इट्स रघुनाथ भट्ट। भट्ट गोस्वामी। तो जब चैतन्य महाप्रभु बनारस आए थे, प्रकाशानंद सरस्वती से कल हम जो डिस्कशन कर रहे थे, डिबेट किए थे, उस समय रघुनाथ भट्ट गोस्वामी छोटे बालक थे, और वो चैतन्य महाप्रभु का संग कर रहे थे, ही वाज एसोसिएटिंग विद चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ये जानते थे कि जो जयपुर या जो आमेर का पूरा एरिया है, वो पूरा आमेर का एरिया, उस एरिया को कहा जाता है कछवाहा। तो वो जो कछवाहा किंग्स हैं वो जाकर दीक्षा लेते हैं बनारस के साधुओं से। सो दीज किंग्स ऑफ कछवाहा किंगडम, आमेर के जो राजा हैं, जयपुर के राजा हैं, उस पूरे एरिया के जो किंग्स हैं, दे वेंट एंड टुक इनिशिएशन फ्रॉम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, एंड रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनको दीक्षा दे रहे हैं, एंड श्रील जीव गोस्वामी इज यूजिंग द रिलेशनशिप जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कछवाहा किंग्स का है, टू पॉलिटिकली गेट देम इन आवर फेवर, ताकि हमारे डीटीज को और हमारे मंदिरों को सुरक्षित कर दिया जाए। यू सी द प्लानिंग। चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही भेज दिया है तपन मिश्र को कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आएंगे, वो दीक्षा देंगे कछवाहा किंग्स को। अब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लिए जैसे ही, और
जयसिंह नहीं, मान सिंह, आई एम सॉरी, मान सिंह दीक्षा लिए। और मान सिंह के दीक्षा लेने के बाद से ही जो कछवाहा किंग्स हैं, जो जयपुर के राजा हैं, आमेर के राजा हैं, और गौड़ीय आचार्यों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। सो इफ आई एम करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मान सिंह के पुत्र राम सिंह के पुत्र जय सिंह वन, एंड उनके पुत्र जय सिंह टू। शायद सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है थोड़ा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट एनीवे, जो जयपुर के किंग्स हैं और गौड़ी आचार्य, उनके बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन और बॉन्ड रहा। और इसको यूज किया शिला जीव गोस्वामी ने कि जब अटैक हो रहा है, जब चीजें स्टेबल अगर ना हो, तो कैसे चीजों को मैनेज किया जाए, पहला यूज ये। दूसरा, जो जयपुर के किंग्स हैं उसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है अकबर के साथ, और जयपुर के किंग जुड़े हुए हैं गौड़ी आचार्यों के साथ। सो गौड़िया आचार्य जयपुर किंग और मुगलों के अच्छे रिलेशनशिप का यूज करके श्रीला जीव गोस्वामी बिकेम सक्सेसफुल टू गेट लैंड फॉर गोविंद देव एंड मदन मोहन। देवर फर्स्ट टेम्पल्स ऑफ वृंदावन। लैंड नहीं थी उसके पहले, तो हमें लैंड चाहिए मंदिर बनाने के लिए, लेकिन सीधा मुगल से नहीं मिलेगा। तो जयपुर किंग के साथ जो रिलेशनशिप है उसको यूज करके और मुगल से लैंड लो, और इस तरीके से हमें गोविंद देव और मदन मोहन का एक्चुअली लैंड मिला था। सो इस तरीके से देयर वाज गुड रिलेशनशिप। सो व्हेन जीव गोस्वामी डिसअपीयर्ड एंड व्हेन औरंगजेब, अकबर की भी मृत्यु हो गई, औरंगजेब आए, तो औरंगजेब ने अटैक किया वृंदावन पर। एंड बिकॉज दीज जयपुर किंग्स दे वर कनेक्टेड टू गौड़ीय वैष्णव, तो उस समय के जो भी आचार्य रहे, उन सब ने उस रिलेशनशिप को यूज करके डीटीज को वृंदावन से राधा कुंड और राधा कुंड से कामेवन शिफ्ट कर दिया। नाउ दिस कामेवन इज नॉट अंडर मुगल, ये जयपुर राजघराने के अंदर था, सवाई राजाओं के अंदर था, आमेर राजाओं के अंदर था, या कछवाहा राजाओं के अंदर था। तो बिकॉज कामेवन is in their kingdom, so the deities were protected. You see the acharyas, they have their head on the sky, वैकुंठ सब मंजरियां हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे डील करना है, दैट दे ऑल वेरी वेल नो, और वो डील कर रहे हैं। आई डोंट नो मैं कम्युनिकेट कर पाया नहीं, बट जब आप पढ़ेंगे और जब इसको समझेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारे आचार्य क्या क्या कर रहे हैं विग्रहों को बचाने के लिए। एनीवेज, सो ऑल दीज डीटीज दे आर ऑन गलता जी। गलता जी जयपुर में स्थान है, अभी जब हम जयपुर गए तो हमने दर्शन भी किया वहां जाकर, और वहां हमारे डीटीज हैं। तो डिबेट, रामानंदी वैष्णवों ने जाकर, जो सवाई जयसिंह हैं जिन्होंने विग्रहों के लिए गलता जी में स्थान बनाया, उनको जाकर चैलेंज किया कि महाराज, जो ये गौड़ीय वैष्णव है राधा कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, लेकिन राधा कृष्ण की उपासना शास्त्र युक्त नहीं है, इट इज अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ शास्त्रस। Now Jaisingh, he had lot of faith on Gaudiya Vaishnava, so he was very disturbed. So he called Vishwanath Chakravarti Thakur and he said, please come and debate. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृद्ध हो गए, क्षेत्र संन्यास लिया था, वो नहीं आ पाए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर sent his dear disciple बलदेव विद्याभूषण, बलदेव और साथ में एक और थे कृष्णदेव, उन दोनों को भेजा। So बलदेव विद्याभूषण, he came to Galata ji and he started discussing on the challenges. I'm little rushing through the past time. He started the discussion on the challenges that Ramanandis raised. So there were three major challenges जो रामानंदीज ने रेज किया। जो पहला चैलेंज है, तो अगर हम चैलेंजेस देखें क्या क्या चैलेंजेस दिए गए उनको, तो जो पहला चैलेंज है वो पहला चैलेंज था अबाउट द संप्रदाय। अरे आपका संप्रदाय ही ऑथेंटिक नहीं है, ये गौड़िया संप्रदाय कहां से आ गया? हमने 4 संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र कुमार संप्रदाय के बारे में सुना था, ये गौड़िया संप्रदाय कहां से आ गया, ये अलग से संप्रदाय कहां से प्रकट हो गया? तो पहला ये चैलेंज। दूसरा चैलेंज, वेयर इज राधा रानी? राधा रानी कहां से पिक्चर में आ गई? कृष्ण इज विद रुक्मिणी, सीता इज विद राम, लक्ष्मी इज विद नारायण, हाउ इज दिस राधा रानी इन, हाउ डिड दिस राधा रानी केम इन द क्वेश्चन ऑल टुगेदर? That was the second question. And third, where is your commentary on Vedanta Sutra? And Baladev Vidyabhushan dealt with all of these 3 challenges. संप्रदाय, संप्रदाय क्या है आपका? आपका संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय कहां से आ गया? तो बलदेव विद्याभूषण बोले कोई चिंता वाली बात नहीं है, हमारा संप्रदाय जो गौड़ीय संप्रदाय है ये शाखा भेद है। शाखा भेद है किससे? ब्रह्म संप्रदाय से। तो शाखा भेद का अर्थ क्या है? ये वृक्ष है और वृक्ष का एक तना है। अब ये तना वृक्ष से जुड़ा है, पोषण ले रहा है वृक्ष से, परंतु फिर भी वृक्ष से अलग इसकी एक आइडेंटिटी है, इसे कहते हैं शाखा भेद। तो ब्रह्म संप्रदाय का शाखा भेद है गौड़ीय संप्रदाय। कह रहे अच्छा जी ये कैसे ऑथेंटिक है? कह रहे क्यों नहीं ऑथेंटिक है?
आपका जो रामानंद संप्रदाय है, ये रामानंद संप्रदाय रामानुज संप्रदाय का शाखा भेद है, रामानुज संप्रदाय का शाखा भेद है। सो हाउ इज इट रॉन्ग, हाउ इज इट अनऑथराइज्ड? जब आप शाखा भेद हो सकते हैं और शाखा भेद होकर आपका संप्रदाय प्रमाणिक है, तो हम शाखा भेद होकर हमारा संप्रदाय प्रमाणिक नहीं हो सकता। यही पास में उदयपुर है नाथ द्वारा, जहां पर वल्लभ संप्रदाय है। अब याद कीजिए, जब हम 4 संप्रदाय डिस्कस किए थे, वल्लभ संप्रदाय शाखा भेद है रुद्र संप्रदाय का। इट्स नॉट ओरिजिनल रुद्र संप्रदाय लाइन। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी संप्रदाय में एक शाखा भेद हुआ है, वहां पर वल्लभाचार्य प्रकट हुए, तो एक शाखा भेद है, वो प्रमाणिक है, आप प्रमाणिक है, हम प्रमाणिक नहीं है। तो बोले क्या प्रमाणिकता का सबूत है आपके पास? आप तो वो मंत्र नहीं जपते जो कि मधु संप्रदाय में जपा जाता है, आपका वो सिद्धांत नहीं है जो मधु संप्रदाय का सिद्धांत है, तो हम कैसे माने कि आप शाखा भेद है? क्या कॉमन है आपके और संप्रदाय के बीच में? बलदेव विद्याभूषण बोले बहुत चीजें कॉमन है। सबसे प्रथम, संप्रदाय की जो लीनियज है वो केवल जो भगवान नाम का मंत्र है उससे लीनियज ट्रैक नहीं होता, जो मूल मंत्र है संप्रदाय का, उस मूल मंत्र से संप्रदाय की लीनियज ट्रैक होती है। तो मूल मंत्र क्या है जो कि आपके गौड़ीय संप्रदाय और मध्य संप्रदाय में कॉमन है? तो देखिए, वो मूल मंत्र है गोपाल मंत्र। गोपाल मंत्र हमारे और गौड़ीय गौड़ीय संप्रदाय और मध्य संप्रदाय में कवर है, वो भी गोपाल मंत्र का जप करते हैं, हम भी गोपाल मंत्र का जप करते हैं, और ये गोपाल मंत्र पूरे संप्रदाय को जोड़ता है। इसके साथ साथ नव प्रमेय है, 9 प्रमेयस, जो कि मध्वाचार्य संप्रदाय के सिद्धांत है, मध्वाचार्य संप्रदाय का प्रिंसिपल है। वो सारी फिलॉसफी से हम एग्री करते हैं। हरि सर्वोत्तम, तारतम्यता, जीव जो है वो भगवान से शाश्वत रूप से अलग है, जो ये सृष्टि है वो भी रियल है और भगवान भी रियल है, ये सृष्टि भगवान की शक्ति है। जो भी मध्वाचार्य जी के प्रिंसिपल टेनेट्स हैं, जो फिलोसॉफिकल टेनेट्स हैं, हम उन सबसे एग्री करते हैं। हाउ इज इट नॉट अ संप्रदाय? हाउ इज इट नॉट अ शाखा बेस्ड संप्रदाय? इट इज अ शाखा बेस्ड संप्रदाय स्थापित किए। बोले राधा रानी कहाँ है शास्त्रों में? तो उसके बाद फिर राधा रानी के प्रमाण लाकर, साक्ष्य प्रमाण लाकर, किस प्रकार से श्री संप्रदाय में तो राधा रानी का चर्चा है ही, मध्व संप्रदाय जिसमें इतना ज्यादा रस की चर्चा नहीं है, वहां से भी राधा रानी के होने का साक्ष्य प्रमाण दिए। साथ ही निम्बार्क संप्रदाय में प्रमाण दिए, वल्लभ संप्रदाय में राधा रानी का प्रमाण है। तो कहीं पर भी राधा रानी का प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं है। साथ ही जो रामानंदी वैष्णव है, उन्होंने ये बोला कि आप राधा कृष्ण जो है वो अविवाहित है। तो अविवाहित हैं, तो जब उनके प्रेम और उनके विग्रह की आप उपासना कर रहे हैं, तो आप समाज में क्या स्थापित करना चाहते हैं? कि राधा कृष्ण की उपासना सही है, और इस प्रकार से आप भी लंपट होकर, कामी होकर और पर स्त्री के साथ गमन करें? तब फिर स्थापित किए कैसे भांडीर वट में ब्रह्मा जी भांडीर वृक्ष के नीचे राधा और कृष्ण का विवाह कराए, शास्त्र से प्रमाण दिए, गर्ग संहिता इत्यादि से। तो राधा रानी की प्रमाणिकता को स्थापित किए। और थर्ड, कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। कह रहे नो प्रॉब्लम, इफ इट इज नीडेड आई विल प्रेजेंट अ कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। एंड देन ही वर्कड फॉर सम डेज, ही बेग्ड प्रेयर्स फ्रॉम श्री गोविंद देव जी, एंड ही रोट अ कमेंट्री। पूरी कमेंट्री नहीं लिखी, पहले उन्होंने एक सिनॉप्सिस लिखा, ब्रह्म सूत्रकारी का भाष्य, और उसके बाद फिर कुछ और समय लेकर उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की ब्रह्म सूत्र पर टीका गोविंद भाष्य की रचना की। नाउ दिस डिडंट हैपन ऑटोमेटिकली, अपने आप नहीं हुआ। हम कल चर्चा कर रहे थे, जो वेदांत सूत्र की प्रथम चार सूत्र हैं, क्या क्या सूत्र हैं? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्माद्यस्य यतः, उसके बाद शास्त्र योनित्वा तत्व समन्वयात। ये जो 4 प्रथम सूत्र हैं वेदांत सूत्र के, 1.1, 1.2, 1.14, इन पर ऑलरेडी जीव गोस्वामी परमात्मा संदर्भ के एंड में लिख चुके हैं, जैसा हम कल डिस्कस कर रहे थे। लेकिन फिर भी अन्य संप्रदायों ने कहा नहीं, हमें फिर भी एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस चाहिए। तो फिर गोविंद भाष्य की रचना उन्होंने की, शिला बलदेव विद्याभूषण ने। और इस प्रकार से गौड़ीय संप्रदाय की ऑथेंटिसिटी को स्थापित किया गया इन गलता जी। एंड देन डीटीज दे मूव्ड फ्रॉम, क्या ढूंढ रहे हैं? और फिर उसके बाद डीटीज को प्रोटेक्ट किया गया, श्री गोविंद देव जी की गरिमा को, उनकी मर्यादा को, श्रीमती राधा रानी को, और संपूर्ण गौड़ीय संप्रदाय की मर्यादा को, उसकी गरिमा को श्री बलदेव विद्याभूषण ही प्रोटेक्टेड। आई एम नॉट डूइंग एनी जस्टिस. This is a very big and detailed pastime, and it should be discussed in absolute detail, but we are on absolute shortage of time. और इसीलिए मैं दुर्भाग्यवश इतने अच्छे से इसके बारे में चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है, बट एनीवेज
भविष्य में कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे। सो बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। सो क्या क्या लीनियज चल रही है हमारे आचार्यों की? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये एक लीनियज है। दूसरा नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, ये सब समझिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डिस्कस। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं परंपरा जानो भालो मते, वन शुड नो द परंपरा वेरी नाइसली। परंपरा नहीं जानेंगे तो हम परंपरा के साथ प्राउड कैसे फील करेंगे? नहीं फील कर पाएंगे। तो दूसरा जनरेशन ये है। तीसरा जनरेशन आया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण का। दे प्रोटेक्टेड द संप्रदाय। नाउ व्हेन दे डिसअपीयर्ड, उनके डिसअपीयरेंस के साथ साथ एक बहुत बड़ा चेंज इंडिया के मैप पर आया, बहुत बड़ा चेंज आया। आज तक जो चैलेंज था, दैट चैलेंज वाज फ्रॉम विद इन द रिलीजन, अन्य संप्रदाय के अंदर कंफ्यूजन, दैट वाज द challenges that our acharyas faced. इस्लाम ऑलरेडी काफी समय से इंडिया में है, क्रिश्चियनिटी है, लेकिन हमारे आचार्यों ने कभी भी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को अपना आइडियोलॉजिकल राइवल नहीं समझा। कभी भी हमारे किसी भी आचार्य ने बुद्धिज्म का खंडन किया, जैनिज्म का खंडन किया, चार्वाकिज्म का खंडन किया, ऑल्दो इनकी फॉलोइंग ज्यादा नहीं थी तब भी इनका खंडन किया। लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, पर्टिकुलरली इस्लाम जो कि पॉलिटिकली बहुत पावरफुल है, इंडिया में पॉलिटिकली बहुत सक्षम है, दक्ष है, उस इस्लाम का खंडन हमारे आचार्यों ने नहीं किया। क्योंकि ऑल्दो पॉलिटिकली इस्लाम इज वेरी पावरफुल, आइडियोलॉजिकली इस्लाम वाज नेवर कंसिडर्ड अ चैलेंज। इस्लाम के सिद्धांत को कभी भी तात्विक रूप से, सिद्धांतिक रूप से इस्लाम की फिलॉसफी को चैलेंज नहीं समझा गया। कोई भी आचार्य डरे नहीं, या कोई भी आचार्य इस्लाम को इस लायक नहीं समझे कि उसके ऊपर भी रिबटल देना चाहिए। देयर फिलॉसफी वाज कंसिडर्ड सो डल। परंतु जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, तो ब्रिटिशर्स के साथ साथ एक आइडियोलॉजिकल युद्ध, एक दार्शनिक युद्ध भारत में चालू हुआ, और उस दार्शनिक युद्ध ने पूरे हमारे आउटरीच के स्वरूप को बदल दिया। आप देखिए किस तरीके से प्रीचिंग चेंज हुई। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब कहां प्रीच कर रहे हैं? मुसलमानों के बीच। चारों तरफ आतंक है, तांडव है, चारों तरफ केओस, मैनेजरियल केओस, फाइनेंशियल केओस, सोशल केओस, कल्चरल केओस, हर जगह केओस है। बट व्हेन यू रीड योर राइटिंग्स, इट अपीयर्स दैट दे आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। ऐसा लगता है वो अलग ही दुनिया में है। उस राइटिंग का उस राइटिंग को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक इतने पॉलिटिकली टर्बुलेंट टाइम पर लिख रहे हैं। दे गेव नो अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम व्हेन दे आर राइटिंग शास्त्रास। तो वो शास्त्र को इस प्रकार से लिख रहे हैं दैट दे आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बट when Baladev Bhaktivinoda Thakur is writing, Bhaktivinoda Thakur is writing on contemporary matters. When Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is writing, he is writing on contemporary matters. Srila Prabhupada लिख रहे हैं, मून मिशन पर लिख रहे हैं, मॉडर्न मैन हैज नो टाइम। नाउ सडनली हमारी प्रीचिंग में ऐसा क्या हुआ कि वो आचार्य जो एक्सटर्नल्स पर बिल्कुल इररेलेवेंट समझते थे, अचानक से हमारे आचार्य ने एक्सटर्नल्स को इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों माना? क्या ऐसा चेंज हुआ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बाद, बलदेव विद्याभूषण के बाद? ऐसा क्या चेंज हुआ कि जो अगली जनरेशन आई, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एंड शिला प्रभुपाद, उसने अपने सराउंडिंग को इतना इंपॉर्टेंट माना? क्या हुआ ऐसा? कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, और वही डिस्कशन हम करेंगे। सो आचार्यज ने एक पॉलिसी को चेंज किया, प्रीचिंग आउटरीच की पॉलिसी को चेंज किया। और आउटरीच की पॉलिसी को क्यों चेंज किया? क्योंकि आसपास की व्यवस्था बदल रही थी। जब यूरोप से क्रिश्चियंस आए, तो यूरोप से क्रिश्चियंस अपने साथ दो चीजें लेकर आए। एक वो लाए क्रिश्चियन इवेंजलिज्म एंड एथिस्टिक रैशनलिज्म। तो बेसिकली जब पोर्टुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच ये सब इंडिया पहुंचे, तो अपने साथ साथ वो इस क्रिश्चियन रिलीजन को लेकर आए। और क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो ट्रेडिशनल रिलीजन्स को डिसरिस्पेक्ट करता है, उनको बिल्कुल डिग्रेडेड एंड थर्ड वर्ल्ड रिलीजन समझता है, डिसरिस्पेक्ट्स
लोकल रिलीजन, ये नहीं आएगा, लोकल रिलीजन। और जो एथिस्टिक रैशनलिज्म है, इस एथिस्टिक रैशनलिज्म के कारण साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ। साइंस साइंस सडनली बिकेम वेरी वेरी पावरफुल इन इंडियन सोसाइटी। साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजी आ गई, एंड देन देयर वाज आल्सो साइंटिफिक आउटपुट, फैक्ट्रीज लगने लगी, इंडस्ट्रीज लगने लगी। लोगों ने देखा कि हाँ साइंस काम करता है, हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ को आसान बनाता है। इलेक्ट्रिसिटी आई, रेलवे आया, टेलीफोन आया, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब चीजें इंडिया में आई। दिस वाज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और लोगों ने देखना शुरू किया, यार हमें धर्म से वैसे भी क्या मिल रहा है, सिर्फ ये ढोंग आडंबर शोषण और ये शोषेबाजी मिल रही है। ऑन द अदर हैंड सी दिस साइंटिफिक discoveries, such fabulous things, इतना fabulous invention हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है। So people, they started to reject religion because Britishers, they were less in number but more in power। और उस पावर का उन्होंने यूज किया कि मैं आइडियोलॉजिकली, देखो पावर से इंडियंस को नहीं कंट्रोल कर सकते थे, सो ब्रिटिशर्स ने आइडियोलॉजिकली इंडिया को कैद करना शुरू किया, दैट यू ऑल आर डम पीपल, you all are illiterate, uneducated and wild people। that is the strategy that Britishers adopted। so Britishers के पास तीन चीजें थी, चार चीजें थी। there were four things that Britishers had। what were the four things? they were educated, होस्ट उनको साइलेंट कर दीजिए जो भी है। they were technologically advanced, they were rational। रोहित ब्रो आपका फोन शायद अनम्यूट है। रोहित रावत प्रो, रुक जाओ मैं म्यूट कर देता हूँ। They were rational, तर्क से सोचते थे, तार्किक थे, and they were also strategist। they were not doing things randomly, they also had a strategy। और इस प्रकार से भारत को दार्शनिक रूप से they captured India rationally। that is the thing। and at that time Bengal में एक concept आया of भद्रलोक। बंगाल की सोसाइटी में there was a concept of भद्रलोक। what's happening? तो देखो किसका अनम्यूट है and then mute him। बोल, चलो वो देख लेंगे। so there is a concept of भद्रलोक। तो भद्रलोक की खासियत क्या है? they are Indian in color and they are Western in thought। तो बेसिकली भद्रलोक वो हैं जो कि इंडियंस हैं बट इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में पढ़े लिखे हैं, और उनको इस तरीके से इंडोक्ट्रिनेट किया गया। ये कंटेक्स्ट में क्यों दे रहा हूं? ये कंटेक्स्ट समझना जरूरी है भक्ति विनोद ठाकुर की राइटिंग को समझने के लिए। आप बिना इस कंटेक्स्ट के भक्ति विनोद ठाकुर के प्रीचिंग को नहीं समझ सकते, और सब्सिक्वेंट आचार्य की भी प्रीचिंग को नहीं समझ सकते। अब आप ये समझिए कि अब चैलेंज इंटरनल नहीं है, रामानंदी संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय अब चैलेंज नहीं दे रहा है। कहां से आ रहा है? हमारी प्रीचिंग का आधार हमारे विषय में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे प्रीच उसको करना है जो उस दुनिया में है। सो आई नीड टू चेंज माई स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू दैट। when all these previous acharyas are preaching, at that time there was a different strategy, and now when these acharyas are preaching, the strategy is different because the audience is changed। now audience is more rational, audience is more educated, audience is more thoughtful, audience is thinking in more open minded, broad minded terms। और क्योंकि ऑडियंस सब उस तरीके से सोच रही है, पूरी प्रीचिंग स्ट्रेटजी को बदलने की आवश्यकता है। सो कंसेप्ट आया बंगाल में भद्रलोक का, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिशर सबसे पहले आए, बैटल ऑफ प्लासी हुआ बंगाल में, जो वहां के लोकल रूलर थे उनको हराया, आई थिंक मोहम्मद सिराजुद्दौला और समथिंग। और उसको हराने के बाद ब्रिटिशर्स वहां रुके, वहां पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई धीरे धीरे।
उसके बाद ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की, और उन ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो इंडियंस जाते थे उनको इंग्लिश एजुकेशन दिया जाता था और बताया जाता था किस प्रकार से जो इंडियंस हैं वो गवार हैं। Indians, they are illiterate, they are uneducated, they are untrainable, they are low class, low creed, and how Britishers are superior by all means. So इसीलिए in traditional India, what was the question? What do Vedas mean? ध्यान से सुनिएगा. What do Vedas mean? But in modern India, during the time of Bhaktivinoda Thakur, the question was, do Vedas even mean anything? क्या वेदों का कोई सच में कोई प्रयोगिकता है, या ये सब फालतू की चीजें हैं, मनगढ़ंत चीजें हैं? इतना ड्रास्टिक चेंज आया इंडियन सोसाइटी में. तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया को इंटेलेक्चुअली डिस्टेबलाइज कर दिया जाए. इंडिया जो कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, जहां फिलॉसफी जन्म की, जहां सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, उसको इंटेलेक्चुअली डिस्टेबलाइज किया जाए और इंडियंस को अपनी इंडियननेस पर या अपनी सिविलाइजेशन पर एक सिविलाइजेशनल शेम दे दिया जाए कि यू ऑल आर इलिटरेट लो क्लास पीपल, एंड इफ यू वांट टू नो सिविलाइजेशन you should use the British way. You should be British in culture to be civilized. Because you are Indians, you worship trees, you worship stones, you worship rivers, you worship lakes, you worship mountains. You all are bunch of uneducated, illiterate fools. And who is classy? We Britishers are classy. Because we dress good, we look good, we live good. And therefore, the Indian civilization is doomed. साथ ही जो एजुकेटेड लोग थे, जो एलीट ब्राह्मणास थे, उनके सामने जब इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन आए कि हाउ कैन गॉड बी वर्शिप्ड इन दिस फॉर्म, हाउ कैन गॉड स्टील द वाइफ ऑफ स्टील द ड्रेस ऑफ अदर्स वाइफ, एक भगवान दूसरों की स्त्री के कपड़ों को कैसे चुरा सकते हैं? जो काली है वो नरमुंडों की माला पहनती है, निर्वस्त्र रहती है, केश फैले हुए हैं. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये कैसा भगवान है तुम्हारा? ये शिवलिंग क्या है? इज दिस द जेनिटेलिया ऑफ योर गॉड? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? So when logical, rational questions were asked, because ब्राह्मणों के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी इतिहास में फेस नहीं किया था, because Indian society was very, very faithful. So they never asked these questions. Now, for the first time in history, someone is asking these questions, and these brahmanas have no idea कि हम इसको कैसे आंसर करें. एंड देयरफॉर ब्राह्मणस ने इंटेलेक्चुअल जो चैलेंज आ रहा था ब्रिटिशर्स की तरफ से, ब्रिटिशर्स क्वेश्चन कर रहे थे सनातन धर्म को, उसकी आइडेंटिटी को, उसके रिचुअल्स को, उसके कस्टम्स को, उसके ट्रेडिशंस को. ब्राह्मणस वर अनेबल टू आंसर दिस एंड दे इग्नोर्ड दीस क्वेश्चंस. हाँ, और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने संस्कृत को सीखना शुरू किया, जैसे मकाले. और संस्कृत को सीखने के बाद उन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, वेदों को पढ़ा और वेदों का ट्रांसलेशन करना शुरू किया. और जब ट्रांसलेशन किया तो वेदों के अर्थ का अनर्थ निकाला और वेदों के अंदर दोष दिखाना शुरू कर दिया. और इस तरीके से जो नॉन ब्राह्मणिकल क्लास थी, जिसको संस्कृत नहीं आता था, उस नॉन ब्राह्मणिकल क्लास को कन्विंस करना शुरू किया दैट एक्चुअली दीज वेदास दे आर यूजलेस. सी ये वेद क्या कह रहे हैं? जो आज भी मकाले की जो ट्रांसलेशन है, इट इज completely contaminated with their irrational thoughts of the Britishers. तो ये पूरा परिप्रेक्ष्य है. क्या परिप्रेक्ष्य है? बंगाल में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, बंगाल में रैशनल मूवमेंट चल चुका है, टेक्नोलॉजी आ गई है, रेल्स आ गए हैं, हाँ, प्रिंटिंग प्रेस आ गया है, वो कॉटन जो कपड़ा बनाने की, बुनने की मशीन आ गई है, चीजें आसान हो रही हैं. और उन आसान होते परिप्रेक्ष्य में जो सनातन धर्म है उसकी क्रेडिबिलिटी ग्राउंड खो रही है. लोग सनातन धर्म पर विश्वास कम कर रहे हैं, इसे ढकोसला अंधविश्वास मान रहे हैं, इसे पिछड़े लोगों का धर्म मान रहे हैं. इस तरीके से देयर इज एन इंटेलेक्चुअल assault from the end of Britishers, and in that time and period of intellectual assault, Srila Bhaktivinoda Thakur, the Kedarnath Dutt, the mighty Kedarnath Dutt appears in Bengal. अब जब आप ये कंटेक्स्ट समझे हैं तो आप भक्तिविनोद ठाकुर की प्रीचिंग को भी समझ पाएंगे. भक्तिविनोद ठाकुर का जन्म एक शाक्त परिवार में हुआ, and it was a very aristocratic family. So from very childhood he got British education, he got English education. हाँ, बट इंग्लिश एजुकेशन होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु का कुछ प्रोमिनेंस तब भी बंगाल में था और चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने सुना था. बचपन से ही भक्तिविनोद ठाकुर स्टार्टेड टू रीड एंड राइट. he used to write poems, very aristocratic poems. उन्होंने पोएट्री पढ़ी, फिलॉसफी पढ़ी, मोरालिटी पढ़ी,
यूटिलिटेरियन क्रिश्चियनिटी भी पढ़ी, क्रिश्चियनिटी भी पढ़ी, इस्लाम भी पढ़ा, सारे कंपैरेटिव रिलीजन्स को भक्ति विनोद ठाकुर फ्रॉम द वेरी यंग एज ही स्टार्टेड टू read that. And Bhakti Vinod Thakur wanted to see ki how these religions they make sense, what is the purpose of religion, because he was coming from a very pious religious family. And his English education, it really helped कि जो भी वो शास्त्र पढ़ रहे हैं, because he was Bengali, he knew Bangla to some extent, he also knew little Sanskrit and he also knew English. तो उन बंगाली या संस्कृत स्क्रिप्चर्स को इंग्लिश ऑडियंस को सिखाने में उन्हें बहुत ज्यादा मदद हुई. And finally, Bhaktivinoda Thakur also has a long life story. Of course, we cannot go in detail. But finally, by some divine providence, Bhaktivinoda Thakur, who was a Shakta, he ultimately became a Gaudiya Vaishnava by the influence of the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he prayed for many years. And after those many years of prayers, Bhaktivinoda Thakur got the copy of Chaitanya Charitamrita. And when Bhaktivinoda Thakur read Chaitanya Charitamrita, so Chaitanya Charitamrita की कॉपी अवेलेबल नहीं है पूरे बंगाल में. अराउंड 13 साल या शायद कहीं 26 साल लिखा है, 13 या 26 साल, somewhere for more than 1 or 2 decades he had to search to get one authentic authorized copy of Chaitanya Charitamrita. And when he read Chaitanya Charitamrita, he got completely convinced of the philosophy of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, and that Chaitanya Mahaprabhu is Bhagavan. तो जब भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रीचिंग शुरू की, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि देयर आर 2 मेजर चैलेंजेस दैट द इंडियन सोसाइटी इज फेसिंग. पहला मेजर चैलेंज है जो ब्रिटिशर्स की तरफ से आ रहा है, दैट इज इमेजिनरी कॉस्मोलॉजी. कि जो ये 5th कैंटो में विशेष रूप से भागवत में जो कॉस्मोलॉजी दी हुई है, इट इज इमेजिनरी, इट इज नॉट रियल ऑथेंटिक. क्योंकि वो जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, वो कह रहा है सन सेंटर में अर्थ चारों तरफ चक्कर लगा रही है, अर्थ गोल है, इट्स अ स्फीयर, मून चारों तरफ चक्कर लगा रहा है. इट डजंट एग्री एंड इट इज नॉट इन सिंक विद द भागवत कॉस्मोलॉजी. दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम कि भागवत कॉस्मोलॉजी को मैं कैसे जस्टिफाई करूं. हाँ. एंड सेकेंड चैलेंज वाज द पुराणिक स्टोरीज. पुराणों में क्या क्या स्टोरीज हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो में 5th कैंटो के एंड में 14 प्रकार के नरकों का वर्णन है. और जब ये ब्रिटिशर्स ने पढ़ा तो उनका such a shitty religion. You see, it is only talking about hellish planets and the punishments that you got. And Bhaktivinoda Thakur, he understood the challenge that the sampradaya had, और जो challenge संप्रदाय अपने उस समय मॉडर्न सोसाइटी में, जो इंडियन सोसाइटी में चैलेंज है. इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर he did something very controversial. भक्ति विनोद ठाकुर said कि जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स का वर्णन है, इट इज एक्चुअली एलेगोरिकल. मतलब ये सांकेतिक है कि 14 प्लैनेटरी सिस्टम सच में एग्जिस्ट नहीं करते. ऑफ कोर्स वी डोंट एग्री विद दिस. ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम सच में एग्जिस्ट करते हैं. भागवत में जो नारकीय लोगों का वर्णन है 5th कैंटो के एंड में, वो एलेगोरिकल नहीं है, वो सांकेतिक नहीं है, वो सत्य है. बट बिकॉज वी हैड टू कन्विंस द ब्रिटिशर्स, we have to make a channel which will bridge the gap between Indian elite and Britishers. Bhaktivinoda Thakur did a lot of things which were very revolutionary. They're still revolutionary. आज के समय में भी उन चीजों को कोई नहीं करता है, but Bhaktivinoda Thakur had to do these things. पुरानी स्टोरीज, पुराणों में स्टोरी है कि सोम ने उसकी पत्नी के साथ संग किया, उससे उसकी प्राप्ति हुई, फिर उसने वो किया, इसने ये किया, इसने. इनफैक्ट for faithful Hindus like you and me, for us also it is difficult to digest it several instances. ना बृहस्पति की पत्नी के साथ ये हुआ, ब्रह्मा जो है अपनी पुत्री के साथ गए, ऐसा वैसा ये वो. पुरानी स्टोरीज को पढ़ेंगे, there are a lot of difficult to digest stories. और ब्रिटिशर्स ने उन्हीं स्टोरीज को पढ़ा. देखो ये कितनी irrational स्टोरीज है. हालांकि वो इस बात को नहीं मानते कि उनका वर्जिन मैरी से जीसस क्राइस्ट का कैसे जन्म हो गया, वो कैसे रैशनल है. दे डोंट एग्री ऑन दिस. हाँ, ये बहुत रैशनल है, वर्जिन मैरी से जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया. Anyways, so they have their own bunch of things. तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा देखो पुराणों को समझने के 3 स्तर हैं. पहला नियोफाइट स्तर है. नियोफाइट स्तर में वो पुराणों को लिटरली ले रहे हैं कि जैसा पुराण में लिखा है वैसा ही हुआ था. उसके बाद एक मध्यम स्तर है जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं,
पुराण तो एलेगोरिकल है, वो जो बता रहे हैं उसके द्वारा वो कुछ और मैसेज देना चाहते हैं, एलेगोरिकल है। लेकिन जो परफेक्ट उत्तम भक्त है वो कह रहे हैं नहीं नहीं, एक्चुअली पुराण तो ट्रांसेंडेंटल है। वो ये सब कहानी बता रहे हैं, परंतु पुराण का एम है दैट यू गो फ्रॉम द लेवल ऑफ बॉडी टू द लेवल ऑफ सोल। दैट इज द गोल ऑफ पुराणा। द पुराणास दे वांट टू टेक अस फ्रॉम द लेवल ऑफ बॉडी टू द लेवल ऑफ सोल, and therefore Puranas bring in those stories. इस तरीके से भक्तिविनोद ठाकुर he really worked very hard so that what was the goal that Bhaktivinoda Thakur was trying to do? India at that time, particularly Hinduism, was in shambles because Hinduism was not able to counter the intellectual critique of the Western scholars. जो intellectually criticize कर रहे थे उसको हम नहीं आंसर कर पा रहे थे, हमारे पास आंसर्स नहीं थे. So Bhaktivinoda Thakur's project was that how the intellectual elite of Western philosophy, Western psyche, they can be convinced of the ultimate message of Gaudiya Sampradaya. How they can be convinced. That was the challenge that Bhaktivinoda Thakur had. That was a massive, massive challenge. भक्तिविनोद ठाकुर पर्टिकुलरली फेस्ड. कैसे हम कन्विंस करें? उसी समय और भी बहुत सारे मूवमेंट्स आए, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ये सब प्रकट हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर. दे ऑल आर कंटेम्पररीज. और इन ब्रह्मो समाज वगैरह ने, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब ने क्या किया? हिंदुइज्म का जो मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप को ही बदल दिया, जस्ट टू फिट विद द वेस्टर्न आइडियाज. Just to satisfy the Western ideas, they rejected the original form of Sanatan Dharma. That was highly condemnable. सनातन धर्म का जो मूल स्वरूप है, वेदांत की शिक्षाएं हैं, पुराण है, उपनिषद है, जो वेदांतिक ट्रेडिशन है, उस वेदांतिक ट्रेडिशन को रिजेक्ट कर दिया और सनातन धर्म में इतने रेवोल्यूशंस ला दिए, इतने चेंजेस ला दिए कि सनातन धर्म के मूल स्वरूप को ही बदल दिया. नाउ सनातन धर्म लुक नथिंग लाइक व्हाट इट वाज अर्लियर. ऑन द नेम ऑफ revolution, on the name of changes, on the name of adjustments, they completely removed the original form of Sanatan Dharma. But Bhaktivinoda Thakur rejected this. He said, no, the Dharma should continue in its original form. But at the same time, we should be competent enough to explain the Dharma to the modern intelligentsia. How we can explain our Dharma, our principles, our ethics, our morality, our customs. How it can be explained in modern day and age, keeping its sanctity alive. कल हम डिस्कस कर रहे थे in the beginning of session, who is an acharya? Acharya is someone who preaches as per time, place and circumstances. So Srila Jeev Goswami, he saw what is the challenge of his time, that he needs to establish the authenticity of Gaudiya Sampradaya in Vedantic tradition. चार वैष्णव संप्रदाय, अद्वैत वेदांत, वेदांतिक ट्रेडिशन में गौड़ीय संप्रदाय की ऑथेंटिसिटी को स्थापित करना जीव गोस्वामी का चैलेंज था. हाँ, सिमिलरली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण का चैलेंज था गौड़ीय संप्रदाय की मर्यादा की रक्षा करना, गौड़ीय संप्रदाय के प्रिंसिपल्स की रक्षा करना जब अन्य संप्रदायों से चैलेंज आया. आज भक्तिविनोद ठाकुर के पास चैलेंज है कि जब वेस्टर्न इंटेलिजेंसिया से चैलेंजेस आ रहे हैं तो उन चैलेंजेस के बीच में सनातन धर्म की ऑथेंटिसिटी और इसकी अथॉरिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है. सो दैट्स रियली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो भक्तिविनोद ठाकुर, he did immense preaching. He opened several bhakti vrikshas, और भक्ति वृक्षा से उन्होंने for the first time preaching को स्ट्रक्चराइज किया. सो सैकड़ों भक्ति वृक्षा पूरे बंगाल में खुले. उन भक्ति वृक्षा में people would come, they would chant, they would hear, they would speak about Krishna, congregate to discuss Krishna. That was the, I would say, initial phase of the global Krishna consciousness movement. It started with Bengal. Bhaktivinoda Thakur, he established these Bhakti Vrikshas in Bengal. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur इसको एक लेवल आगे लेके गए और इस भक्ति वृक्षा मॉडल को पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश किया with 64 Gaudiya Math. And Srila Prabhupada took this one stage ahead and he established it throughout the world. So in a way, this Srila Bhaktivinoda Thakur is the first genius of this global Krishna conscious movement. जो विजन था भक्तिविनोद ठाकुर का, विजन था that there will come a day when people from all over the world, they will come together in Navadvip Dham, they will put hands in hands and they will chant Jai Sachinandan Gaur Hari.
That was the vision that Srila Bhaktivinoda Thakur had, and that was, of course, fulfilled by Srila Prabhupada. So Bhaktivinoda Thakur established Bhakti Vrikshas. Bhaktivinoda Thakur, he fought with Up-Sampradayas, fought against Up-Sampradayas. Up-Sampradaya क्या है, इसको थोड़ा सा भी 5 मिनट में डिस्कस करेंगे. Then Bhaktivinoda Thakur also wrote bhajans, because the complex philosophy can be explained in simple bhajans. And then Bhaktivinoda Thakur also wrote books. देखिए भक्तिविनोद ठाकुर का कंट्रीब्यूशन क्या है. So Bhakti Vrikshas for general masses, fought again Up-Sampradayas for general masses, bhajans for general masses, and books for class preaching. In this way, क्या चाहिए? हाँ, मेरा तो रूम में रखा है, टेबल पे. So in this way, Bhaktivinoda Thakur ensured how mass and class preaching can be done together. In this way, Bhaktivinoda Thakur, what happened? Yeah, band ho gaya. I'm sorry. Kit ला सकते हैं bro, please. Thank you very much. आज पता नहीं क्या हो रहा है, so many disturbances. Just give me a second, please. ये अपने आप disconnect. So Bhaktivinoda Thakur, in this way, he fought, he established the modern format of Gaudiya Sampradaya, and in Jagannath Puri he prayed to Lord Jagannath कि मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इस legacy को आगे बढ़ाए. And to fulfill the vision of Srila Bhaktivinoda Thakur, Lord Jagannath or Bimla Devi blessed Bhaktivinoda Thakur with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur or Bimala Prasad De. Just give me a second. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he appeared. Okay, let me make myself host. बड़ी दिक्कतें इस टेक्नोलॉजी. Just give me a second. रोहित ब्रो, ये होस्ट बना सकते हो क्या टैब को, या को होस्ट, सॉरी. ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खत्म कर रहे हैं, 10% है, तब तक चल जाएगा. हाँ ठीक है, एक दिन का सेशन है ना, तो बोल दूंगा. ठीक है, ये होस्ट बना नहीं बना. ओके, बन गया. आई एम सॉरी प्रोजीज फॉर दिस इनकन्वीनियंस. गेट लगा दीजिए, गेट लगा दीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच. Okay, so by the prayers of Srila Bhaktivinoda Thakur appears Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. हो गया, thank you. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ने क्या किया? देखिए, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur के पास आने से पहले let us understand the concept of अवतार. अवतार क्या होता है? 5 मिनट लूंगा ये एक्सप्लेन करने के लिए. There is a spiritual plane of existence and then there is a material plane of existence. तो भगवान spiritual plane of existence पर exist करते हैं. तो भगवान जब चाहें out of his will, he comes from spiritual plane of existence to material plane of existence. वो कुछ समय तक इस material plane of existence पर रहते हैं और वापस अपने spiritual plane of existence पे चले जाते हैं. तो अवतार comes from the word अवतरण. अवतरण का अर्थ है to descend,
टू कम डाउन। तो भगवान स्पिरिचुअल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से मटेरियल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में आते हैं, कुछ समय रहते हैं और वापस स्पिरिचुअल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में चले जाते हैं। तो भगवान जितनी देर तक मटेरियल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में रहते हैं वो उनकी अवतार लीला है। ये मटेरियल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में भगवान दो चीजें करते हैं, देयर इज लीला एंड देन देयर इज शिक्षा। लीला इज फॉर द माइंड, मन को एंगेज करने के लिए, और शिक्षा इज फॉर इंटेलिजेंस। यह है अवतार। अवतार से अलग एक और चीज होती है, उसको कहते हैं आवेश। आवेश, आवेश का अर्थ क्या है? अवतार एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड के लिए होता है, और दैट सेम बीइंग ही कम्स, ही प्लेस द लीला एंड देन ही गोज बैक। आवेश में अ डिवाइन बीइंग, एक सुपीरियर बीइंग क्या करता है, एक मॉर्टल व्यक्ति के अंदर अपनी शक्ति का आवेश करते हैं फॉर सम टाइम, और फिर उसके बाद अपनी शक्ति को वापस ब्रैक कर लेते हैं। इसको कहा जाता है आवेश। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप उत्तराखंड वगैरह में देखें तो जो उनके ग्राम देवता है, कुल देवता है, वो उनका आवेश होता है लोगों में। So they became powerful for a certain specific point of time and then they go back to their normal consciousness. तो आवेश हुआ, एक सुपीरियर बीइंग का मुझ में आवेश हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय क्या हुआ, बंगाल में दिस कंसेप्ट ऑफ आवेश वाज मिसयूज्ड। व्हाट विल पीपल डू इफ आई एम अ गोस्वामी, इफ आई एम अ बाबा जी और समथिंग, तो मैं ये बोलूंगा मुझ में कृष्ण का आवेश हुआ है और तुम में गोपी का आवेश हुआ है। तो जब कृष्ण और गोपी साथ में आते हैं तो क्या होता है, संभोग होता है। सो वी शुड एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी। सो दिस कंसेप्ट ऑफ आवेश वाज हेवीली मिसयूज्ड। और इसके बाद ये जो आवेश के कंसेप्ट का मिसयूज है, इसका हेवीली मिसयूज के कारण गौड़ीय संप्रदाय की चारों ओर थू थू होने लग गई। सभी लोगों ने कहा गौड़ीय संप्रदाय इज सिंपली एन इंस्टीट्यूशन फॉर इलिसिट सेक्स। क्यों? क्योंकि मुझ में कृष्ण का आवेश हुआ है, तुम में राधा का आवेश हुआ है, सो वी शुड कम टुगेदर एंड वी शुड एंगेज इन इंटरकोर्स। इन दिस वे द कंसेप्ट, द प्योर कंसेप्ट ऑफ आवेश was misused by the Babajis in नवद्वीप। तो बंगाल में दो क्लास बन गए, एक क्लास फॉलोअर्स और एक मास फॉलोअर्स। तो बंगाल में कहावत बन गई, जो क्लास के लोग हैं, जो क्लासी लोग हैं, एजुकेटेड लिटरेट इंटेलिजेंट लोग हैं, दे विल गो टू रामकृष्ण मिशन, और जो इलिटरेट गवार जाहिल लो क्लास लोग हैं, दे विल गो टू गौड़िया परंपरा। गौड़िया इज फॉर इलिटरेट पीपल, गौड़िया संप्रदाय इज फॉर इलिटरेट पीपल, एंड Ramakrishna mission is for classy, educated, intelligent class of men. In this way, the entire Gaudiya Sampradaya was heavily chastised because of the misconduct of Babajis. And therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was instructed by Bhaktivinoda Thakur that you should establish Daiva Varnashram. Bhaktivinoda Thakur tak, after Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, किसी ने भी संन्यास नहीं लिया। षड गोस्वामी, विश्वनाथ, बलदेव, नरोत्तम, श्रीनिवास, श्यामानंद, जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर कृष्ण दास बाबा जी, भक्तिविनोद ठाकुर, ऑल ऑफ देम बिकेम बाबा जी। और बाबा जी का अर्थ क्या है कि जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार वर्णों से परे हैं बाबा जी। क्यों? क्योंकि ना हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्यो न शूद्रो। महाप्रभु ने कहा कि हम तो वर्णाश्रम से ऊपर हैं, वी आर बियॉन्ड दिस कंसेप्ट ऑफ वर्णाश्रम। इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय में महाप्रभु के बाद किसी ने भी सन्यास नहीं लिया। क्यों? हम सन्यास क्यों लें? भक्ति वर्णाश्रम से परे है, भक्ति में वर्णाश्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। याद कीजिए कल वाला पॉइंट, राधा वल्लभ संप्रदाय में जैसे कर्म और ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है प्रेम की प्राप्ति करने के लिए, गौड़ीय संप्रदाय में भी यही कहा गया, जो ये वर्णाश्रम है ये कर्म है, तो कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है भक्ति के लिए। हाँ, वर्णाश्रम की भक्ति के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि ये कंसेप्ट आप जन सामान्य पे लगाएंगे, जिसका रागानुगा भक्ति का अधिकार नहीं है, वो जबरदस्ती अगर कर्म और ज्ञान को त्यागने का प्रयास करेगा, देन ही विल बिकम अ सहजिया, ही विल बिकम अ चीप फॉलोअर, स्यूडो फॉलोअर। इसीलिए वैदिक भक्त को कर्म और ज्ञान में लगना ही पड़ेगा। वो कर्म और ज्ञान भक्ति को एक्लिप्स नहीं करेगा, वो कर्म और ज्ञान उसकी भक्ति को सपोर्ट करेगा। इसीलिए जब वैदिक भक्त वर्णाश्रम में लगता है, वर्णाश्रम के अनुकूल अपना कार्य करता है, तो वर्णाश्रम वैदिक भक्त की भक्ति को सपोर्ट करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
और यही भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि तुम दैव वर्णाश्रम को रिजेक्ट कर रहे हो, तुम वर्णाश्रम की पद्धति को रिजेक्ट कर रहे हो। हाँ, वर्णाश्रम की पद्धति शुद्ध भक्ति नहीं है, परंतु तुम्हारा शुद्ध भक्ति का अधिकार भी नहीं है। तुम्हारा अधिकार है कि तुम वैदिक भक्ति का पालन करो, और वैदिक भक्ति में वो वह कर्म और ज्ञान जरूर करेगा जो कर्म और ज्ञान उसकी भक्ति को सपोर्ट करेगा। इसलिए वर्णाश्रम का पालन करो, शास्त्र को पढ़ो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने धर्म में रहकर कार्य करो, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, 4 वर्ण 4 आश्रम में आपको रहना पड़ेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट टीचिंग दैट Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was given by Bhaktivinoda Thakur. Therefore, this Varnashram, dear devotees, it is not महाप्रभु जब राय रामानंद के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो राय रामानंद से पूछ रहे हैं महाप्रभु व्हाट इज भक्ति, तो महाप्रभु बोले, राय रामानंद बोले वर्णाश्रम का पालन करना भक्ति है। महाप्रभु बोले एहो बाह्य, इट इज एक्सटर्नल, वर्णाश्रम का पालन करना भक्ति नहीं है। हाँ, वर्णाश्रम का पालन करना भक्ति नहीं है उसके लिए जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर है, परंतु यदि आप शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है तो आपको वर्णाश्रम शिक्षा का, वर्णाश्रम पद्धति का पालन करना ही पड़ेगा। यदि आप वर्णाश्रम को त्यागेंगे देन यू विल बिकम अ स्यूडो फॉलोअर, चीप फॉलोअर, यू विल बिकम अ सहजिया। Therefore, when Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he established Gaudiya Math, he established Brahmachari Ashram, he established Sannyas Ashram, and he rejected Babajis. No Babajis, with some exception, Akinchan Krishnadas Babaji. Otherwise, everyone is sannyasi, grihasth, vanaprastha, brahmachari, brahman, kshatriya, vaishya, shudra. As per your स्वभाव, psychological nature, आपको वर्णाश्रम धर्म में लगना ही पड़ेगा. This is the instruction that Srila Bhaktivinoda Thakur gave to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, dear devotees. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, with the very beginning, he started to cut out रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे, जो रूप गोस्वामी का विरुद्ध सिद्धांत है उन सारे सिद्धांत को रिजेक्ट करना है। इसका बहुत फेमस उदाहरण है राधा रमन चरण दास बाबा जी। Now this Radha Raman Charan Das Babaji was a very literate, very educated, very qualified aristocratic person, जिन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़कर उड़ीसा में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रारंभ किया, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का प्रचार प्रारंभ किया। Everything was good with Radha Raman Charan Das Babaji except one thing. He said this Hare Krishna Mahamantra is for japa, कीर्तन के लिए भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। कीर्तन के लिए यह मंत्र करना है, जप के लिए हरे कृष्ण महामंत्र करना है। So Bhaktisiddhanta Maharaj, he started to oppose him. Bhaktisiddhanta Maharaj was no one at that time. Bimla Prasad, he was simply an assistant to Bhaktivinoda Thakur. So people, they mocked. तुम जानते हो राधा रमन चरण दास, even today Radha Raman Charan Das Babaji is a very influential, although of course he has died long ago, but he's still very influential and his followers are still there. आप देखेंगे हर जगह लिखा होता है स्टिकर पे, भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम. This is the teaching from Radha Raman Charan Das Babaji. So Bhaktisiddhanta Maharaj, he started to oppose him, vehemently opposing him. And people couldn't understand why are you opposing? He's preaching so nicely, he's writing so many books, he's getting so many followers. Why are you opposing? Yes, I am supposed to oppose this because these people are not following the pure teachings of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Gaurang Nagari ka Mahaprabhu, Srila Bhaktisiddhanta Maharaj will do heavy opposition. एक बार गौरांग नागरी वालों को लगा कि शायद श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रशंसा कर देंगे, then he will appreciate us. So in their article, they also used to publish magazine. In their magazine, they glorified Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Gaudiya Math. In next week, Bhaktisiddhanta Maharaj also wrote an article about Gaurang Nagaris, heavily criticizing them, heavily chastising them. तो उन्होंने बोला आपको क्या लगा, आप मेरा प्रशंसा कर देंगे तो मैं आपके कुछ सिद्धांत को स्वीकार कर लूंगा. I will not accept your nonsense philosophy. The teachings of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is given by Srila Bhaktivinoda Thakur in Narottam Parivar. Bhaktivinoda Thakur's name was Kedarnath Datta. और याद कीजिए, although हमने नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में चर्चा नहीं की, परंतु आपको पता हो नरोत्तम दास ठाकुर के पिता हैं कृष्णानंद दत्त. और ऑफ कोर्स नरोत्तम दास ठाकुर तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, परंतु उनके भाई संतोष, he married, and उनसे जनरेशन चलती रही. उन्हीं की जनरेशन में आए केदारनाथ दत्त. Now Kedarnath Datta, it's a question for all of you. There is one more personality at the same time of Kedarnath Datta, which is influential in Bengal with the same surname Datta, and his name was Narendranath Datta, who was later known as Swami Vivekananda.
So Swami Vivekananda and Bhaktivinoda Thakur, they were contemporaries, particularly Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, they were contemporaries. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur got a lot of offers that you should join us in the freedom struggle. And the contemporary Narendranath Dutt or Swami Vivekananda, he also participated in freedom struggle. Bangan ugao, tulsi mat ugao, game khelo, Gita mat padho. He came up with these radically different philosophies. But of course, Rupanuga Viruddha Apasiddhanta Dhvanta Harine, establishing the pure, dignified, purest philosophy of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur completely established the need of Vaidhi Bhakti. कि हम लोग नहीं कर सकते रागानुगा भक्ति. Why are we trying to do Raganuga Bhakti? We cannot do Raganuga Bhakti without adhikar. We don't have adhikar. मैं रागानुगा भक्ति नहीं कर सकता. मुझे वैदिक भक्ति करनी है. कृति साध्य, भवेद साध्य, भावसा साधना विदा. रागानुगा वैदिक भक्ति का डेफिनेशन दिया रूप गोस्वामी. That it has to be done by senses. मुझे इन इंद्रियों को सेवा में लगाना होगा. That is the fundamental nature of वैदिक भक्ति. तो इंद्रियों को सेवा में कैसे लगाएंगे? By service, by the medium of service. So we need to do service. And that was the lifetime teachings of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He opposed Aul, Baul, Sakhi Beki, Gaurang Nagari, Karta Bhaja, Daravesh, Sahajya, Smartas, all these 13 Upsampradayas. Even these Upsampradayas, they caused havoc in the personal life of Bhaktivinoda Thakur. काला जादू किया गया भक्तिविनोद ठाकुर के फैमिली पर. भक्तिविनोद ठाकुर के कई फैमिली मेंबर्स की तबीयत, उनकी वाइफ की हेल्थ, it became very degraded. Many of his family members, they died due to the black magic done by all these asuras, rakshasas. But Bhaktivinoda Thakur didn't budge an inch. He fought against them till the last moment. And then he went to Jagannath Puri to do bhajan in the samadhi of, near the samadhi sthali of Srila Haridas Thakur. आज भी वहां पर भक्तिविनोद ठाकुर के विग्रह हैं अगर आप इस्कॉन पुरी जाते हैं. So carrying forward the legacy, जो instruction Bhaktivinoda Thakur दिए Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur को, that you preach this message of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. There are a lot of challenges. The entire society is averse to the principles of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. And we as Gaudiyas, we as followers of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, it is our sole responsibility to carry forward the legacy of Sriman Mahaprabhu, Sri Chaitanya Manobhishta, the mood and mission of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. And therefore, Sri Thakur Bhaktivinoda, he instructed Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that you worship Gaur Mandal, you worship Mayapur Mandal. And therefore, Bhaktivinoda Thakur, he started Navadvip Mandal Parikrama. And there he was attempted to be killed. गोबर फेंका गया, पत्थर फेंके गए, क्या कुछ नहीं किया गया भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास. जब वो ब्रज मंडल परिक्रमा के लिए अपनी पार्टी को लेकर वृंदावन पहुंचे, वृंदावन के सप्त देवालयों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए. क्यों? क्योंकि भक्तिसिद्धांत महाराज ने लोअर कास्ट को भी दीक्षा दी, वुमेन को दीक्षा दी फॉर द फर्स्ट टाइम. So many revolutionary things Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur did to protect the Siddhanta, to protect the Sampradaya. It's actually very difficult thing. आपको आउटरीच करना है, संप्रदाय को पॉपुलर करना है, परंतु सिद्धांत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड. दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड. दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डू. सिद्धांत को स्थापित करना है, परंतु लोगों को स्वीकार भी करवाना है. हाउ डू यू डू दैट? आप प्योर सिद्धांत रखेंगे, लोग कट ऑफ हो जाएंगे. लोगों को लाने का प्रयास करेंगे, सिद्धांत गायब हो जाएगा, डिल्यूट हो जाए. परंतु विचक्षणा, शास्त्र कहते हैं, वन हु इज वेरी एक्सपर्ट, वन हु इज एन आचार्य, ही अंडरस्टैंड्स हाउ टू एडजस्ट द सिस्टम and how to make the timeless teachings of the sampradaya relevant in contextual day and age. So in this way, Srila Bhaktivinoda Thakur passed on his heart and the baton of Gaudiya Sampradaya unto the glorious hands of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gloriously passed on that baton to our Srila Prabhupada. And of course, where to begin speaking about Srila Prabhupada? How much can I speak? How much can you listen? And how much can we understand? So
Of course, Srila Prabhupada took the baton forward, took the fight forward, and the desire of a global conquest of Gaudiya Vaishnava Sampradaya, Prithvi Teyach Jatanagara Sarvatra Prachar Hoy More Naam. So when Mahaprabhu spoke this 500 years ago, no one could understand how this will happen. When the sannyasis, the mighty sannyasis of Gaudiya Math would discuss among themselves, Prithvi Teyach Jatanagara maybe Mahaprabhu meant India. हाँ, इंडिया में, वेस्ट में, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, डोमिनिकन रिपब्लिक, कोलंबिया, देश के नाम नहीं सुने, वहां पर गौरवाणी का प्रचार कैसे हो? दैट वाज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन दे हैड, एंड दे थॉट, ओ पृथ्वी ते आछे मतलब भारत ते आछे. And the very meek and humble Abhay Charande would humbly disagree. Say, if Mahaprabhu said Prithvi te ache jati, it will mean Prithvi te ache jati. Sampurn Bhumandala. And by his mighty magnanimous efforts, the journey which started 5,000 years ago, the journey of struggle, of sacrifice, of fights, of blood, of sweat, of tears, journey of endless debates, journey of endless discussions, ultimately, eventually, and beautifully culminated in the glorious life of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, with his little demeanor, short height, dark complexion, weak and fragile body, he carried on his back the burden of 5,000 years of Gaudiya lineage. कि पूरा संप्रदाय, जिस प्रकार से जब बलदेव विद्याभूषण जा रहे हैं जयपुर डिबेट करने के लिए, तो पूरा संप्रदाय बलदेव विद्याभूषण को देख रहा है, सभी आचार्य देख रहे हैं, हाउ यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द authenticity of the sampradaya, authenticity of the sampradaya. And now, when Srila Prabhupada, he onboarded Jaladuta en route to the United States of America, the entire sampradaya was looking at Srila Prabhupada. The legacy of sampradaya, legacy of Gauravani now resides on the shoulders of Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada came to West, and the glorious story of Srila Prabhupada is known to all of us, so I'll not go in detail. So इस प्रकार से, dear devotees, we traveled this journey together, such a long journey, but a journey of struggles, sacrifices, and whatnot. So all these personalities, Srila Jeev Goswami, Srila Rupa Goswami, Sri Vedanta Deshika, Sri Vyasa Tirth, Jaya Tirth, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Baladev Vidyabhushan, Srila Narottam, Sri Srinivas, Sri Shyamanand, Sri Bhakti Vinod, Sri Bhakti Siddhant, Srila Prabhupada, all of them are Sampradaya Sevak. Yes, they're Sampradaya Sevak and also Sampradaya Rakshak. All of them are protectors of Sampradaya. They protected the Sampradaya in its darkest of hours. When Sampradaya was on the verge of disappearance, all these mighty acharyas, they came and they protected the legacy of Gaudiya Sampradaya. Dear devotees, you all kindly bless me that I can become a servant of the Sampradaya. They all of them were Sampradaya Rakshak. Please bless me that I can become Sampradaya Sevak. तो जो ये 5,000 वर्ष की जर्नी है, ये जर्नी से मुझे थोड़ा कन्विक्शन मिले, मुझे थोड़ी प्योरिटी मिले, so that Sampradaya is glorious. The philosophy is glorious, but more glorious than a glorious philosophy is following the philosophy. So please bless me with your merciful hearts, bountiful hearts, that I may be able to follow the teachings, the principles of the Sampradaya. With that, we officially conclude the Road to Gaudiya Vaishnavism series. I hope कि इन सारे डिस्कशन से हमारे हृदय में संप्रदाय के प्रति कुछ थोड़ा सा रिस्पेक्ट बढ़ा होगा. उतना सारा स्ट्रगल और जो भी कहानी हुई है, जो भी हमने डिस्कस किया पिछले 6 सेशन में, ऑफ कोर्स हम जस्टिस नहीं कर पाए. देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट आई शुड स्पीक मोर, so many things that we should discuss more, but maybe in future time we will do it. Also 7 तारीख को in 7 January we are having on the instruction of His Grace Vasudama Prabhu ji एक और extension session इसका. शर्म से कहो हम हिंदू हैं, टॉपिक थोड़ा ऐसा है, तो उसमें हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे. हम डिस्कस करेंगे कैसे जो ये एजुकेशनल सिस्टम है which started with मकाले, वो एजुकेशन सिस्टम पूरा कंटेमिनेट कर दिया भक्ति मूवमेंट को, और साथ ही साथ
इंडियंस के माइंडसेट को, और कैसे हाउ वी आर गेटिंग ब्रेन वॉश विद आर एन इन्वेजन थ्योरी और कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट के द्वारा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे 7 तारीख को, बट इट इज अ डिफरेंट सेशन। उसका जर्नी टू गौड़ीय वैष्णविज्म से बहुत ज्यादा कुछ रिलेशनशिप नहीं है। सो विद दैट आई एंड हियर डियर डिवोटीज, आई एम हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस। जिनका भी है, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क। नो प्रॉब्लम। विश्वजीत प्रभु पूछ रहे हैं, प्रभु जी, Hinduism still faces same problem which it faced in the advent of British evangelical intelligentsia. More or less, it's exactly the same now, as education is now public and opposed to early. Being these challenges automatically addressed by the force of time, as philosophies Narendranath Datta or Falana Dhinkana mission were already refuted by Srila Bhaktivinoda Thakur and Bhakti Saraswati Thakur. Prabhu, in my humble opinion, acharyas did what they had to do. But now the responsibility lies on our shoulders. We need to take the charge. हर आचार्य ने जो करना था वो किया, और कालखंड में जो भगवत इच्छा होगी वो होगा, पर अब अपन लोगों को प्रीच करना है, अपन लोग को अब बंदूक लेनी है हाथ में। तो इसलिए आचार्य has left it for us so that we can take some credits. Yeah, Vishjit Prabhu did something, IVF Dwarka did something. So when we go to Krishna, we can say yes, I did this in Srila Prabhupada service. वो गंगा तो बह ही रही है, उसमें हाथ धो लोगे तो लगेगा हाँ हमने हाथ धो लिया बहती गंगा। सो आई थिंक क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ है। अब ये क्वेश्चन है क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं। हम मिलके हाउ वी कैन, श्रील प्रभुपाद वांटेड अस टू क्रिएट अ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट एथिस्टिक साइंटिस्ट, अगेंस्ट जो कम्युनिस्ट है उनके अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद। So therefore, we should work to create such a propaganda. We should work to push against all these rascal atheistic scientists and atheistic philosophies. And we should work to establish Shuddha Bhagavata Dharma. Acharya Dharmam Paricharya Vishnu Vicharya Tirthani Vicharya Veda Vinana Gaura Priyapada Sevan वेदादि दुष्प्राप्य परम विदन्ति। आचार्य धर्मम परिचर्या विष्णु। The sole purpose of existence of an acharya is to serve Vishnu. That is the reason an acharya exists. So all these acharyas, they have served Vishnu to the fullest of the extent possible. Now it is our responsibility that we need to carry forward the legacy of these acharyas. मुश्किल तो है। Okay. Hare Krishna Prabhuji. How did Srila Bhaktivinoda Thakur made out the authenticity of Chaitanya Charitamrita when he was unable to find one? I am not sure of the process that he used. Probably he consulted Guru Sadhu Shastra. जैसे जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान खोजना था, तो ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान अभी भी नवद्वीप में 2-3 है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के डिसअपीयरेंस के बाद गंगा जी बढ़ गई थी, तो जो एरिया है, पूरा एरिया था, इट वाज एक्लिप्स्ड। वो एरिया काफी समय तक पानी में डूबा रहा, इसलिए वो लीला स्थलियां सब विलुप्त हो गई थी। तो भक्तिविनोद ठाकुर ही टुक आउट ज्योग्राफिकल मैप्स फ्रॉम दैट पीरियड एंड ही चेक्ड कि किस गंगा के किस तट पर हो सकता है श्री चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस। सो ही चेक्ड ज्योग्राफिकली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, उस समय का जो भी रिकॉर्ड्स है गंगा के किस तट पर महाप्रभु थे, क्या लीलाएं करते थे, एंड देन इवेंचुअली ही बॉट हिज गुरुदेव शिला जगन्नाथ दास बाबा जी। एंड देन जगन्नाथ दास बाबा जी जब उस समय एक टोकरी में आए, बिकॉज ही वाज टू ओल्ड, और उनको पलकें खोलनी पड़ती थी, तो जब पलकें खोल के बताया इज दिस द बर्थ प्लेस, तो देन ही डांस्ड, एई तो निमाई जन्मस्थान, एई तो निमाई जन्मस्थान। सो गुरु साधु शास्त्र तीनों से ऑथेंटिकेट करके ही एस्टैब्लिश्ड दैट दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। सो प्रोबेबली ही यूज्ड द सेम प्रोसेस, ऑल्दो आई हैवंट रेड और हर्ड येट कि क्या एग्जैक्ट प्रोसेस उन्होंने hermeneutics का या प्रोसेस यूज किया। आई एम ऑनेस्टली नॉट श्योर अबाउट इट, so I'll not comment on that. प्रभु जी, yesterday आप YouTube कमेंट 4 संप्रदाय के फॉल्स के बारे में बता रहे थे। yes.
Let me share it from my tab. Although वो पद्म पुराण में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई डिनायल नहीं है. That section it exists in पद्म पुराण. बट पद्म पुराण के अलावा भी वो कहीं काफी जगहों पर एग्जिस्ट करता है. So I will just find out that section. Yes. So let me just join the meet from my tab. Okay. In the meantime, any other question, anyone? Okay, no question. ठीक है, perfect. एक बार इसको co-host बना दीजिए, मार्शल को. थैंक यू. तो एक वीडियो पे कमेंट आया था कि जो 4 संप्रदाय की बातें हैं ये सब ढकोसला है, और जो भी 4 संप्रदाय की बात कर रहा है वो सब नर्क में जाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि हम ही 4 संप्रदाय की बात करें. जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे मिला कि अन्य स्कॉलर्स भी ये 4 संप्रदाय को स्वीकार करते हैं. यहाँ पे मैं पद्म पुराण तो दिखाई नहीं रहा हूँ, क्योंकि पद्म पुराण में देयर इज नो डिनाइल. वो भी डिनाई नहीं करते हैं कि चीज पद्म पुराण में लिखी हुई है 4 संप्रदायों के बारे में. और ऐसा नहीं है कि केवल गौड़ीय वैष्णव इसको स्वीकार करते हैं. तो जो राघवाचार्य महाराज हैं, ये श्री संप्रदाय के बहुत स्कॉलरली साधु हैं, प्रमाणिक साधु हैं ये भी, और अन्य साधु भी संप्रदाय के मान रहे हैं. और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्कॉन का ऐसा मत है, गौड़ीय संप्रदाय की भी अलग अलग शाखाएं इस बात को स्वीकार करती है. नाउ पर्टिकुलरली व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि ये गर्ग संहिता है. दिस पर्टिकुलर थिंग हियर इज गर्ग संहिता. और गर्ग संहिता 1061 दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. वहां पर हमें इन 4 संप्रदायों का नाम मिलता है. Oops, what happened? वहां पर हमें इन 4 संप्रदायों का नाम मिलता है. आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी दिस क्लियरली. इट इज विष्णु, आई मीन आई एम लिटिल वीक इन इंग्लिश. विष्णु स्वामी वामानाम सहस्त्रधामा धवस्तु ब्राह्मणः रामानुजस्तु शेषांशो निम्बार्क सनकस्य च एते कलो युगे भाच्या संप्रदाय प्रवर्तकाः. So this is Garga Samhita 1061. So that also talks about it. उसके साथ साथ this is भक्तमाल, जो कि रामानंद संप्रदाय में एक बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ है. उस भक्त माल में भी 4 संप्रदायों का वर्णन होता है और रामानंद संप्रदाय के द्वारा स्वीकृत है. क्या कैसे है? 24 प्रथम हरि बपु धरे त्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रकट. तो बेसिकली ये मनवंतर बताया गया जहां पर भगवान प्रकट होते हैं. बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर श्री रामानुज उदार सुधा निधि, आई डोंट नो व्हाट दिस वर्ड इज, कल्पतरु विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करु मध्वाचारज मेघ भक्ति सर ऊपर भरिया निम्बादित्य. हमने डिस्कस किया था निम्बार्काचार्य का एक और नाम निम्बादित्य है. तो निम्बादित्यादि कुहर प्रज्ञान जुहरिया. So you see all these 4 sampradayas are discussed here in Ramananda Sampradaya also, in Garga Samhita also, and Ramanuja Sampradaya's scholar also accepts it. So it's not that only Gaudiya Vaishnavas are speaking about it. और ऑफ कोर्स मैंने बताया था BNK शर्मा जो कि मध्व संप्रदाय के स्कॉलर हैं. तो अभी तो हमें बस ये पता है कि वो डिस्कशन है पद्म पुराण में, पर BNK शर्मा एक और डिटेल बताते हैं कि वो नारायण और सनक के बीच का कन्वर्सेशन है. जब वो श्लोक आता है, दैट एंटायर श्लोक कम्स, संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्थ निष्फला मताता कलो भविष्यन्ति चत्वारा संप्रदायना. So BNK Sharma, who is an established scholar in Madhva line, he also accepts this principle. So Madhvas also accept, Ramanandis accept, Ramanujis accept, Garga Samhita is there. मैंने सेशन में बताया था निम्बार्क is also accept, निम्बार्क संप्रदाय also accepts. तो बच्चा कौन सा संप्रदाय जो रिजेक्ट करता है? यूट्यूब पे कमेंट करने वाला संप्रदाय. अगर उनका कोई संप्रदाय चालू होगा तो दे मे रिजेक्ट इट, बट वी डोंट रियली केयर फॉर देयर रिजेक्शन. वी आर हैप्पी विद देयर रिजेक्शन. This makes sense. Okay. आनंद शर्मा जी कह रहे हैं प्रभु जी दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, sometimes when I get too much distracted with news around Sanatan Dharma and how its followers are being treated around the world, just
Then just to tranquilize this distress, I get to this thought that isn't it all going to happen for sure in future due to effects of Kali? I cannot save it. Then I quietly extend my hand towards my japmala and start chanting. हाँ, कलयुग के प्रभाव से म्लेच्छ यवन तो बढ़ेंगे ही. There is no denial to this fact. और वो अपना प्रकोप संपूर्ण भूमंडल पर फैलाएंगे. पर हमें खाली नहीं बैठना है. ऑफ कोर्स हम इनके अलावा तलवार लेकर चलनी है, बट मेन पॉइंट इज जो मैं समझ पा रहा हूँ विद माय लिमिटेड इंटेलिजेंस दैट वी शुड ट्राई टू सर्व श्री चैतन्य महाप्रभु एंड वी शुड ट्राई टू सर्व दिस मिशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. दैट्स व्हाट वी कैन अल्टीमेटली डू. और हम उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं. तो इसलिए बहुत चीजें संसार में चल रही हैं और बहुत चीजें चलेंगी. अभी तांडव होना है यवनों का. यवन बहुत तांडव करेंगे. पर मेरा निजी ये मत है कि we should just go to guru sadhus, we should go to our gurujan, we should fold our hands like this, we should bow down and say Prabhuji, how can I serve? And we should simply serve under guidance. और हम उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. पति जी उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. So of course we should pray, we should do everything which is needed, but जो practical चीज हम अभी कर सकते हैं is that we should join our hands and we should pray to the gurujans, please instruct me how I can help. और अगर हम उस योगी हुए तो गुरुजन बोलेंगे हाँ जाओ बांग्लादेश की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, बोल देंगे. अगर हम भी बलदेव विद्याभूषण और जीव गोस्वामी के स्तर के हुए तो बोलेंगे हाँ जाओ गो एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम. नहीं होंगे तो बोलेंगे कि प्लीज कंप्लीट योर 16 राउंड्स एंड जाओ किसी छोटे मोटे कॉलेज में प्रीचिंग करो, खुश रहो. डिपेंडिंग ऑन आवर अधिकार दे विल ब्लेस अस. Okay, thank you very much, Prabhuji. I think we can end now. Hare Krishna. So we will thank His Grace Sucharudev Prabhuji. I was reading in Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 7. Srila Prabhupada comments that it's not possible for everyone to preach. Who can preach? Who can serve the sampradaya? The person who has served the holy name so much. Only he can create impressions amongst heart. Only he can, inspire everyone around us, around him. And so we see this thing in Sucharudev Prabhu. So Srila Prabhupada also says that how do we know that one person has attracted the attention of the acharyas? He has attracted the attention of the sampradayas. It is, it is by how much that person has developed his attachment to sampradaya. So when we see Sucharu Prabhu's attachment to Guru Parampara, to sampradaya, we for sure know that he has attracted the grace of our Gurujans, of Srila Prabhupada, of our entire Guru Parampara. And to be honest, in my personal perspective, I see something. I see many great things that will happen in the future. And Suchar Prabhu, Krishna will surely make him his instrument in accomplishing these great feats for Sampradaya. एक बार इनकी मेरे पास एक नोटबुक इनकी रह गई थी मेरे पास, अभी भी मेरे पास ही, इनको वापस नहीं करी. उसमें मैं इनके नोट्स को नहीं पढ़ना चाहिए, बट आई वाज गोइंग थ्रू हिज नोट्स, एंड इनके नोट में एक जगह पॉइंट था दैट रामानुज संप्रदाय इज फ्रॉम पास्ट 800 ईयर्स, अभी तक चल रहा है. इस्कॉन कैसे 50 साल में घुटने टेक सकता है? गौड़ी संप्रदाय 500 साल में तो डंडल क्यों कर गया? वट शुड वी डू टू कीप आवर संप्रदाय स्ट्रॉन्ग एंड सेफ एंड कीप इट ग्रोइंग? So all these desires, these are the proof that he has actually attracted the grace of Sampradaya. He has genuine love for Acharyas. This genuine love is not something which can be attained very easily या फिर बस ये intellect के साथ आ जाता है. It comes here when the person has genuine heart, a genuine service inclined heart towards the Acharyas, and Sucharu Prabhu has that. So we are very, very blessed that we attended this course by His Grace Sucharudev Prabhuji, and for sure we know in future that Krishna will use him as his great instrument, is as a very great instrument. Maybe in future you will see him in saffron with some stick. You will be offering him obeisances. Maybe he's going to his annual birthday celebration somewhere. But yeah, Sucharudev Prabhu, he is an amazing devotee who has attracted the grace of Parampara. So we would like to thank His Grace Sucharudev Prabhuji by loudly chanting. We can unmute ourselves, maybe. We can now? By chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare 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 Hare, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram Ram Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare. His Grace Sucharudev Prabhuji ki. Jai. Jai. All glory to you, Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna.
So, dear devotees, there was a little message from His Grace Vasudhama Prabhuji also. So, Prabhuji could not join the session. Prabhuji is somewhere in the outside Delhi, in somewhere camp. So, Prabhuji was saying, ki, thank you so much for attending the course. We hope you all have now understood topic, got your doubts cleared. So, Prabhuji was saying, now those who are interested to express their heartfelt gratitude to offer some dakshina, and here is an opportunity to you to offer token of gratitude to your teacher, His Grace Acharya Prabhuji. And this is not compulsory. Those who wishes to donate dakshina can kindly follow the link, follow the below link. So I will share the link below. So this is a short message from His Grace Vasudhama Prabhuji also. So we're also very grateful to Suchardev Prabhuji for this wonderful series. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Bye-bye. Shri Prabhupada ki jai.